محترم مولانا محمد شراز صاحب اور انتظامی کمیٹی کے صدر محترم محمد عبدالقدیر صاحب، مالک ملن ٹرانسپورٹ محترم جناب، اور بہت ہی کم وقفے میں بہت زیادہ ترقی و کامیابی کی طرف گامزن ہونے والے محترم جناب یوسف ملپلی صاحب، اور ہمارے درمیان بہت ہی مخلص اور فعال انجینئر AEE محترم جناب سید رفیق قادری صاحب، جو برادر سجادہ نشین ہیں درگاہ علن شریف کے، وہ یہاں موجود ہیں، اور سینئر صحافی عزیز اللہ سرمد صاحب۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل 2 منٹ میں اپنی بات کو رکھ کر جو ہمارا اصل جو پروگرام ہے اس کی طرف ہم جائیں گے، کیونکہ عزیز اللہ سرمد صاحب نے تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کو دہرایا جائے، تو لہٰذا میں مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے مدرسے کے ان تمام اساتذہ کو اور انتظامی کمیٹی کے صدر اور جو تمام جو اراکین ہیں، عہدیداران ہیں، کہ جنہوں نے یہاں پر، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بہت بڑا مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے، حفظ کا شعبہ چل رہا ہے، ناظرہ چل رہا ہے، اور بچوں کو مسلسل یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے۔ جب میں خدیر صاحب سے اور مولانا ثناء اللہ صاحب سے اور ہمارے شراز صاحب سے پوچھ رہا تھا تو انہیں بتلایا کہ 12-13 اساتذہ مسلسل اس مسجد کے تحت کام کر رہے ہیں، اور دینی کام اور ملی جو عربی جو زبان ہے، اور اس کو عربی پڑھنے کے لیے، اور جو بھی مسئلے ہیں اس کو یہاں پر باضابطہ ایک منصوبے کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مبارکباد کے قابل ہیں صدر، سیکریٹری، تمام اراکین کے ایسے جو پراسب دور میں اتنی مضبوطی کے ساتھ مدرسوں کو تھامنا واقعی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دوسری بات، یہاں پر یہاں پر ایک حسن خیرات اور ایک نعت میں ایک عائشہ فاطمہ طالب علم ہیں، طالبہ ہیں، اور دوسری جو ہے عائرہ فاطمہ، جو حسن خیرات میں پورے ضلع میں سوم درجے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر عبید الرحمن عبدالسلیم صاحب کے فرزند یہاں بیٹھے ہیں، جو آپ کے مدرسے میں مسلسل 2 بار وہ حسن خیرات میں انعام اول حاصل کیے ہیں۔ اس مرتبہ کمیٹی نے طے کیا تھا کہ جو 2-2 3-3 مرتبہ لے رہے ہیں انہیں اعزازی طور پر کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے، کیونکہ دوسروں کو بھی موقع ملے۔ تو مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ وہ یہاں کے آپ کے مدرسے کے طالب علم جو حفظ کا مکمل کر ابو بکر مسجد میں تراویح پڑھا رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ واقعی اساتذہ کرام کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ میں دونوں طالب علم کو اور یہ عبید الرحمن صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ عبدالقدیر صاحب کا یوسف ملپلی صاحب نے جو ہماری کتابیں تھیں، جو دین کی جو سیرت، کوئز، قرآن کوئز، حفظ حدیث، تحریری تقریری مقابلہ جات کا جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بالکل آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کتابیں آپ چھپوائیں گے ہم اس کا جو ہے نا خرچہ دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ الحمدللہ انہوں نے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے رفیق قادری صاحب نے جو بچوں کو جو انعامات دیے جاتے ہیں اس میں انہوں نے کافی بڑھ چڑھ کر تقریباً آدھے طلباء و طالبات کو انہوں نے اپنی طرف سے انعام دیا۔ اسی طرح عبدالقدیر صاحب نے بھی بڑھ چڑھ کر ہمارے سیرت النبی اسلام کو دیکھتے ہوئے آگے انہوں نے بڑھ کر کے تعاون پیش کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ محترم محمد عبدالقدیر صاحب جو صدر انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ ہیں، وہ ہمارے خطیب امام مسجد حاضہ مولانا برکات شہر میں پچھلے 45 سالوں سے جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکالا جاتا رہا ہے۔ اس جلوس کا مقصد مسلمانوں میں مسلک اور مکاتب فکر سے اوپر اٹھ کر اتحاد قائم کرنا تھا، اور اسی کے ساتھ قائد محترم خادم اسلام صاحب نے طلباء و طالبات میں سیرت النبی اور قرآن مجید سے رغبت قائم کرنے کے لیے، سیرت النبی اور قرآن مجید سے ان کو جوڑنے کے لیے تحریری اور تقریری مقابلوں کا بھی اہتمام کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن جو سیرت النبی تحریری تقریری مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے وہ سلسلہ رک گیا۔ میں ڈاکٹر اصغر
चुलबुल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से उस सिलसिले को शुरू किया और एक बड़ी टीम उनके साथ जुड़ी हुई है। इस साल के जो ये पिछले 5 सालों से सीरतुन नबी के मुकाबलाजात हो रहे हैं, इस साल तकरीबन 7 मुकाबलाजात मुनक्किद किए गए और पूरे गुलबर्गा जिले से 3000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने उसमें हिस्सा लिया। और खुशी की बात यह है कि पूरे कर्नाटक से इन मुकाबलों को इनेकाद करने का मुतालबा हो रहा है और बेलगाम से एक कमसिन तालिब इल्म ने मुकाबले में हिस्सा लिया और उसने इनाम अव्वल हासिल किया। तो हमारी डॉक्टर मोहम्मद अजहर चुलबुल साहब की ज़ेर निगरानी ये कोशिश है कि आने वाले साल ये जो मुकाबले हैं इनको रियासती सतह पर मुनक्किद किए जाएँ और इन मुकाबलों को कामयाब करने की तमाम तर जिम्मेदारी गुलबर्गा के अहल साहब की है, गुलबर्गा के बिरादरान मिल्लत की है कि वो इन मुकाबलाजात को कामयाब बनाएं और इन मुकाबलाजात में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर इस मुकाबलाजात को कामयाब बनाया जा सकता है। इस साल जो मुकाबलाजात हुए वो उसने क़िरात, उसने नात खानी है, इस्लामी क्विज़, सीरत क्विज़, कुरान क्विज़ और तहरीरी और तकरीरी मुकाबलाजात। जब हम इन मुकाबलाजात के इनेकाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डॉक्टर अजहर चुलबुल साहब, तो वहाँ पर कनाडा के साथियों ने हमसे कहा कि आप सिर्फ मुकाबले जो है मुसलमानों के बच्चों के दरमियान ही कर रहे हैं, गैर मुस्लिम बच्चों के लिए भी आपको मुकाबलों का इनेकाद करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी तजवीज़ थी। इस तजवीज़ को सीरतुन नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर ने गौर किया और आइंदा साल से कन्नड़ा ज़बान में भी सीरतुन नबी के ये मुकाबलाजात मुनक्किद किए जाएंगे। इस तरह से सीरत का पैगाम गैर मुस्लिम बिरादरान वतन तक भी पहुँचाने का काम इस कमेटी के तहत होगा। तो ये बहुत ही मिसाली काम है, जो तो गुलबर्गा में दीन का बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये सरजमीन दीन के लिए बहुत ही ज़रख़ेज़ वाक़ई हुई है, क्योंकि यहाँ पर औलिया अल्लाह और हमारे सल्फ़ सालिहीन ने काम किया है। उसी के साथ तलबा और तालिबात में भी मौजूदा जो इर्तिदाद का फितना है, तलबा और तालिबात को जो मदारिस और कॉलेजेस में दीन से दूर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए इस तरह के मुकाबलों का जो बेड़ा मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा, ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिला गुलबर्गा और सीरतुन नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक ने शुरू किया है, वो बहुत ही अहम और वक्त का तकाजा है। आपको ये जानकर मसरत होगी कि सीरतुन नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक का एक शानदार इमारत भी रिंग रोड पर, हुन्नाबाद रोड पर तामीर की जा रही है। एक अहले खैर साहब ने जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं, इकबाल अली उनका नाम है, उन्होंने 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन का अतिया दिया है, जहाँ पर एक मस्जिद होगी और 4 मंजिला इमारत वहाँ पर तामीर होगी। इंशाअल्लाह आइंदा साल तक ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी। तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जिसमें सीरतुन नबी के हर ज़बान में किताबों को रखा जाएगा और वहाँ पर सीरत पर लेक्चर्स होंगे, तौसीह लेक्चर्स होंगे और फिर उस मस्जिद में एक विजिटर्स गैलरी भी बनाई जा रही है। उस गैलरी में बिरादरान वतन को मदऊ किया जाकर ये दिखाया जाएगा कि नमाज किस तरह अदा की जाती है और मस्जिद की क्या सरगर्मियाँ होती हैं। तो ये बहुत बामकसद तरीके से काम कर रही है। इसके लिए मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजहर चुलबुल साहब को और तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो आप हजरात के सामने डॉक्टर अजहर चुलबुल साहब अपने ख्यालात को पेश करें। उसके बाद और सीरतुन नबी के सदर अलहाज डॉक्टर अजहर रहमान चुलबुल और उनकी टीम हमरा अलहाज मुश्ताक अहमद साहब, रिटायर्ड AW साहब और सरबत साहब और महमूद साहब और मस्जिद हाजा के सदर व मोअज़्ज़िज़ मेंबरान और दीगर लोग जहाँ पे ये लोग जो मौजूद हैं, सबको मेरा सलाम। इस सीरतुन नबी के मैं मुसलसल अजहर अहमद साहब को मैं जो देखते आ रहा हूँ, इनकी कोशिश है जो ख़म इस्लाम के साथ जो रहकर कंटिन्यू वो सपोर्ट करते रहे और उस चीज़ को
कंटिन्यू आगे बढ़ाते गए। मरहूम खमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद एक खलासा पैदा हो गया था हमारे यहाँ, मगर अल्लाह के और रसूल पाक के सदक़े तुफ़ैल में डॉक्टर अलहाज असगर चुल्लू साहब और उनके हमारा टीम और शाना ब शाना उनका साथ देते हुए मैंने देखा कि भाई हमारे मुश्ताक अहमद साहब और सरमद साहब इन तमाम लोगों की अजीज़ साहब वगैरह मौजूद नहीं हैं, उनकी एक टीम है तो इन चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ के ये लोग कोशिश करते हैं और कई लोगों से वो अप्रोच होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जब एक मरतबा मुझे इस साल कुछ किताबें ला के दिए तो मैं तकरीबन 10-15 दिन तक तो उसके ऊपर नज़रसानी नहीं कर सका। बाद में जब मैं उसको खाली वक्त में जब मताला किया तो बड़ी खुशी और मसरत हुई कि भाई ऐसे लोग भी अल्लाह ताला हमारे शहर गुलबर्गा में रखा है कि उन चीज़ों को पूरी तरीके से हमारे बच्चों को जो इल्म से और सारी चीज़ों से जो है ना ये लोग मोबाइलों की तरीके तरफ से जो बिल्कुल दूर हट रहे हैं उनको इस तरफ लेके आ रहे हैं और उनको इल्म की आगे बढ़ाते और उनकी रोशनी डाल रहे हैं और उनको तमाम चीज़ों से सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ऐसे 2-4 किताबों में अलग अलग से टूल्स थे और नबी करीम के पूरे जो भी चीज़ें थे सारी चीज़ें हैं, शायद आप लोगों तक भी पहुंच गए होंगे या नहीं तो भी इनसे आप ये तलब कर सकते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चूँकि मुझे कुछ बोलने के लिए दिया गया है तो मैं अल्लाह ताला और मेरे हबीब पाक से मैं यही दुआ करूँगा कि इनके अल्लाह ताला उनको एक अच्छी सेहत दे, उनकी पूरी टीम को और लंबी उम्र दे और इनके जज्बात और उनके साथ ऐसे कई लोग जुड़े और इस मामले को दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आगे बढ़ाएं और ऐसे मामलात में कोई भी शक व शुबा से अपनी मदद करते हुए कोई पीछे ना हटें। मेरे खदीर साहब जो हैं इस मस्जिद हाजा के सदर हैं, बल्कि सुना वो मेरे क्लासमेट हैं और मैं उनको शुरू से भी देखा हूँ कि इन चीज़ों में बहुत बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं और इससे ज़्यादा मैं ये कहना नहीं चाहता कि भाई आप सब लोग भी इन तमाम पर्सनालिटीज़ को पहले से ही आप लोग जानते हैं कि ये लोगों के शुरू से भी किरदार और जो कुछ भी काम काज वगैरह हैं तो ये लोग हमारे हक में हमारे इसके अंदर काम करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों की हम मदद करें, कभी भी हम पीछे ना हटें। तो आइंदा भी आप तो हम मेरी गुजारिश है कि हम सब लोग इनका दिन दुगनी रात चुगनी जैसा भी आपका जो है ना हम लोग उनकी मदद करते रहें। बस इतना